हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12 बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बिफोर दिस टॉपिक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड what is fertilization, gametogenesis, fertilization, then plantation, that means implantation. Okay, so in this topic I will discuss pregnancy and embryonic development. These are the consequences steps of fertilization. In it, when embryo just attached with the uterine wall. Okay, before this, in our previous lecture I have made a diagram in which I have shown that these are the trophoblast layers that attached with this. Okay, this attached with this uterine wall and then completely cavity of uterus formed in which embryo sac is there and this is the embryo. Okay, this embryo connected with the maternal blood with the help of what? These villi, finger-like structures and called as the placenta. Okay, in it, before parturition or before birth, this plug of mucus becomes thickened. That means it completely seal the uterus. यूटेरस को ये कम्प्लीटली बाउंड कर देता है, कोई भी चीज़ इसके अंदर एंटर नहीं कर सकती, ना ही कोई चीज़ रिलीज हो सकती है। अगर कोई भी चीज़ रिलीज होती है, कोई सॉल्यूशन रिलीज होता है, इसके अंदर से कोई सब्सटेंस रिलीज होता है, तो दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम विद द फीटस। सो दिस इज द म्यूकस और ये थिकन हो जाता है, बिल्कुल क्लोज कर देता है उस पैसेज को, और जब पार्चुलेशन होना होता है तब ये ओपन होता है। दैट विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट टॉपिक वेयर हार्मोन्स एक्ट ऑन इन दिस। सो दिस इज द diagram in which embryo attached with mother blood with the help of placenta and situated inside the uterus. If I show this diagram into a cellular level, then you may clearly watch here that these are the trophoblast layer. ये आपकी trophoblast layers हैं that are having the stem cells, and stem cells are those type of cells then can able to produce all kind of cells. We know we have three germ layers: ectoderm and endoderm, and in between ecto and endo there one more layer arise called as mesoderm. These will further perform their specific functions to form specific organ of the embryo. So these are what having, these are the chorionic villi, because these are the finger-like projections. These are finger-like projections like this. आप ये मान के चले ये आपकी chronic villi है and this is your tissue. तो that becomes interdigited, एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोजली टाइटली पैक हो जाते हैं, और ये मैटरनल ब्लड है जो कि सप्लाई कर रहा है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है व्हाट डू मीन बाय द प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा क्या है? इट इज ए कॉम्बो ऑफ टिश्यू, maternal tissue as well as the chorionic villi that form the placenta, and these are interdigited, closely packed. In 12th class, placenta is not discussed so much here, but a question that is very important, that is what are the functions of placenta. When I am talking about the functions of placenta, there are two types of functions. First is called as the endocrine function. ओके, अगर मैं फर्स्ट फंक्शंस की बात करती हूँ तो एंडोक्राइन एज यू नो दैट हार्मोन, तो ये ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं और हेल्प करते हैं। एंड सेकंड इज द ट्रांसपोर्ट। यू नो, मदर के अंदर जो बेबी होता है वो उसका वूम में जब रहता है, यूटेरस में रहता है, तो उसका बाहर की वर्ल्ड के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। उसके लिए मदर ही उसका क्या है, होल वर्ल्ड। इट मीन्स उसकी मदर को ही सारी चीज़ें उसको सप्लाई करानी होती हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला फंक्शन है व्हाट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मदर के द्वारा बेबी को प्रोवाइड करी जाती है। सेकेंड चीज है फूड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, एनर्जी। देन एक्सक्रीशन, बेबी जो है वो जो भी एक्सक्रीटर उसकी बॉडी से जो भी एक्सक्रीटर रिलीज होगा दैट विल आल्सो एक्सक्रीट विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। देन homeostasis. You know what is homeostasis? Homeostasis is maintaining a balanced environment that will only provided by the placenta. Okay, but when
आई एम टॉकिंग दीज हार्मोन्स। ये हार्मोन समझने हमें बहुत जरूरी है। सबसे पहला हार्मोन है हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन, सेकेंड प्रोजेस्टेरोन, देन ह्यूमन कोरियोनिक, ये हार्मोन की बात करें हम, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, देन ह्यूमन प्रोलैक्टिन हार्मोन। ओके, तो ये जब मैं इन 4 हार्मोन की बात करती हूँ तो ये तो 4 हार्मोन वो हैं जो कि कब बनते हैं, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग टाइम से ही बनने शुरू हो जाते हैं। बट ये जो आपका 5th हार्मोन है दैट इज रिलैक्सिन, ये ओवरी कब बनाते हैं, लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी की जो स्टेजेस होती हैं उसमें वो लास्ट में रिलीज करती है, क्योंकि जब पार्चुरेशन होना होता है तब इस हार्मोन की जरूरत पड़ती है। तो ये कौन से हार्मोन हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन। यही वो हार्मोन है दैट शोज दैट प्रेगनेंसी अकर, प्रेगनेंसी हुई है। और जो मार्केट में जो अवेलेबल होती है ना प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स, उसके अंदर भी यही हार्मोन्स होते हैं। इनका लेवल चेक होता है और उससे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी मे बी अकर। ओके, these hormones level increase manifold at the time of pregnancy, क्योंकि इनको क्या करना है, you know that प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन को क्या मेंटेन करना होता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना होता है, और ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को प्लेसेंटा को बनाने में हेल्प करनी है। सेम प्रोलैक्टिन हार्मोन भी क्या करता है, प्लेसेंटा के फंक्शनिंग में हेल्प करता है, उसको बनाने में हेल्प करता है। दीज आर द 3 more hormones that help in the formation of maintaining homeostasis condition inside the baby as well as the mother. So these cortisol and thyroxine, these mainly concerned with the metabolism. So these are the hormones that are secreted by placenta and help in maintaining the various types of function. I would like to mention here that these stem cells how can form. We know that gestation period is of 9 months. Okay, during starting lecture I am saying that pregnancy is of how months, 9 months. और इसको हम 3 ट्राइमेस्टर भी कह सकते हैं, 3 ट्राइमेस्टर यानी कि 9 मंथ्स और 3 सेट्स में, यानी कि फर्स्ट सेट, सेकेंड सेट एंड 3 सेट्स, और ये आपके डिवाइडेड होते हैं अगेन मंथ्स में। तो जब मैं 9 मंथ्स में बात करती हूँ तो क्या क्या बनता है, क्यूरियोसिटी होती है मन में कि किस टाइम पर बेबी के अंदर कौन सा ऑर्गन बनता है। तो सबसे पहले फर्स्ट मंथ में जो सबसे पहली जो हम एक डॉट के रूप में जो दिखाई देती है, इट्स लाइक दिस, और इसको बोलते हैं हम हार्ट, और यही इंडिकेट करता है कि बेबी इज वायबल, बेबी जिंदा है, जीवित है। सेकेंड मंथ में बनते हैं उसके लिम्स और डिजिट्स, उसके हाथ और पैर बन जाते हैं, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स दोनों ही बन जाते हैं, और उनकी जो फिंगर्स होती हैं डिजिट्स ये भी बनना शुरू हो जाती हैं। 3 और 4 मंथ्स में ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, और जो एक्सटर्नल जेनिटियल ऑर्गन्स हैं वो भी अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। दैट मीन्स कि 4 मंथ्स वो है जब सबसे ज़्यादा क्या किए जाते हैं, जो जिसे हम बोलते हैं फीटस इंडिकेटिंग टेस्ट किए जाते हैं कि जो फीटस है वो मदर से जो बन रहा है दैट इज मेल और फीमेल। ओके, तो कौन से क्रूशियल मंथ्स है, 3 एंड 4। और अगर आप कभी भी किसी भी बुक्स वगैरह में कहीं पर भी जब आप फिटिसाइड की बात करते हैं तो आप ये देखिएगा जो सबसे पहले जो हम बोलते हैं कि अबॉर्ट किए जाते हैं, अबॉर्शंस किए जाते हैं, वो इसी टाइम पर किए जाते हैं, बिकॉज ये सेफेस्ट पीरियड माना जाता है कि मदर को कोई हानि नहीं होगी इस टाइम पर, बट दैट इज इलीगल। ओके, देन 5th मंथ में हमारा बनता है मूवमेंट एंड हेयर। अब यहाँ तक जो बॉडी थी ना वो अटैच्ड थी एक जगह, ये जो फिटस था ना ये अटैच था, नाउ इट स्टार्ट मूविंग। व्हाट स्टार्ट मूविंग, ये घूमना शुरू कर देता है बच्चा, और मदर कैन फील दैट कि बेबी जो है वो क्या कर रहा है, मूव, एंड दैट इज ए गुड साइन ऑफ प्रेगनेंसी ऑल्सो। सो इन 6 मंथ body hair, eyelids and eyelashes, these are formed. Now after 6 month you can say अगर बेबी पैदा होता है तो वो क्या होगा, उसके सारे बॉडी पार्ट्स बन चुके हैं, लेकिन हम उसको हेल्दी नहीं कह सकते बिकॉज जो मेच्योरिटी आती है वो कब आती है, 9 मंथ्स में। तो दैट मीन्स 6, 7, 8, 6 मंथ में ये चीज़ें बन गई, 7th एंड 8th एंड 9th ये वो टाइम पीरियड होता है जब बेबी जो होता है वो फुली मेच्योर होता है, या जिसको हम फुली डेवलप्ड बेबी मानते हैं। अब बात आती है कि व्हाट इज दिस अम्बिकल कोड।
You know, umbilical is the only junction between mother and the baby. ये umbilical cord क्या है? ये आपकी स्टेम सेल्स हैं और इसको ही हम प्रिजर्व कर देते हैं, जिसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन. इसमें क्या होता है कि जब बेबी का बर्थ होता है और जिस अम्बिकल कोड को हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं, और कट करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों के बीच में कट लगाते हैं जो मदर और बेबी के बीच में कनेक्शन था, और उसके बाद का कुछ पोर्शन हम क्या करा देते हैं, क्रायो प्रिजर्व करवा देते हैं, और उसको हम कितने टेम्परेचर पर रखते हैं, -196 डिग्री ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन. हम इस पर इसको स्टोर कर देते हैं. और अगर बच्चे के अंदर कभी कोई भी जेनेटिकल प्रॉब्लम राइज होती है, तब हम इसको, क्योंकि ये स्टेम सेल है, हम इसको यूज कर लेते हैं क्या बनाने के लिए, एक्टो, मीजो एंड एंडो, कोई भी ऑर्गन बनाने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं. सो दिस इज द होल समरी अबाउट द प्रेगनेंसी एंड द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. स्टे विद अस एंड टेक केयर.